nice to see you. Thank you very much. Wonderful. So beautiful. Thank you. Good morning. Thank you. Non-communicable diseases, organized by the Department of Home Science, the IIS University, Jaipur, on 8th and 9th of January 2016. The conference aims to provide a deeper insight in the epidemiology of non-communicable diseases, to understand the complications of these diseases and its related economic burden. It also aims to discuss the global and national initiatives, strategies for prevention, control and innovation for better management of these non-communicable diseases. We acknowledge the distinguished presence of Dr. Vishwa Mohan Katoj, former Secretary, Department of Health Research, Dr. Ashok Gupta, the Honorable Vice Chancellor, the IIS University, Professor K.S. Sharma, Advisor, the IIS University, Professor Pradeep Bhatnagar, Dean, Dr. Rahinam to join them. अभिनंदन है अतिथि आज तुम्हारा. I now request our Vice Chancellor, Dr. Ashok Gupta, to extend floral greetings to our keynote speaker. Namaskar. The chief guest of this inaugural session and the keynote speaker, Dr. V.M. Katoj, former Secretary, Department of Health Research and former Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi. My colleagues on the dais, off the dais, the students, delegates, ladies and gentlemen. It's indeed a great privilege and a matter of pleasure to extend a hearty welcome to
to all of you today when we begin with our two-day national conference on prevention and management of non-communicable diseases. The IS University is not a very old institution as such. It started in 1995 as a girls' college with a very small number of students and staff. Later, it became an autonomous college. The NEC granted it an A grade. The Ministry of Human Resource Development, Government of India, conferred the status of a deemed university on the IS University in 2010. We are a multi-faculty, multidisciplinary university having arts, science, commerce, home science, fine arts, management, computer science, and pay a lot of stress on the all-round development of students. We ensure that our students are not only homemakers, but they become professionals also. So whatever learning they have here is properly utilized and put into service of the motherland. And I always say with pride that our old students have been placed in various prestigious institutions, and they are certainly doing wonderfully well. Many of them have joined civil services, police services, other services, and some of them are self-entrepreneurs. This two-day national conference on prevention and management of communicative diseases has been conceived and planned by the Department of Home Science under the convenership of Professor Ila Joshi and the organizing secretary Dr. Swati Vyas, supported by all members of the staff and students. And I'm sure this conference is going to help us know about the nuances of the problem we are discussing with. I was talking with Dr. Katoch this morning when I met him, and I could find that he is very closely associated with Jaipur. In fact, Jaipur is his sasural, and Jaipur is his hometown now, and he has had multifaceted personality. He is a medical doctor and got into so many administrative and research positions, and his contribution, we had heard about him. In fact, I have not been able to meet him earlier, but I knew about him, and this is certainly a matter of great pride that he is here to inaugurate this conference. This conference aims to expose participants to the growing burden of non-communicable diseases representing significant threat to health, development and economic growth worldwide. It also provides platform for discussing prevention strategies and better management of non-communicable diseases. I'm sure the 2 days of deliberations will benefit the nutritionists, academicians
and public at large. So once again, my hearty welcome. Special thanks to our chief guest and others like Professor Lohia and others who have come from different parts to attend this two-day seminar, two-day conference. I'm sure the deliberations will prove to be very rich and enlightening. Thank you and welcome. Thank you, sir. I now invite Professor Pradeep Bhatnagar, Dean, Faculty of Science, the IIS University, to give the audience an insight about the conference. Dr. Katur Saab, Honorable Vice Chancellor, Dr. Ashok Gupta, Convener Dr. Professor Eli Joshi, Organizing Secretary Dr. Swati Vyas, resource persons, guests and participants. On behalf of the organizing committee, I welcome you all to this national conference on prevention and management of non-communicable diseases organized by the Department of Home Science of our university. Non-communicable diseases become a challenge not even to the nation but also for the world. The diseases are those that are not contagious or transferable from one human to another. Random genetic abnormalities, hereditary, lifestyle, bad eating habits, or environmental changes, even pollution caused by lipophilic or other chemicals can cause non-communicable disease such as cancer, diabetes, asthma, trauma, hypertension, and mental disorders. Substance abuse and lack of exercise have been proven to also cause some of these diseases and or aggravate them. These diseases not only affect people who are aged above 40 but also to our younger generation, and they are also affected. This is because of change in their life cycles that includes bad food habits also. In our country, malnutrition is another important factor which is responsible for many of these diseases. A healthy diet helps protect against malnutrition in all its forms, as well as NCDs like diabetes, heart diseases, stroke, and even cancer. The first area of the conference will reflect global and national health trends, problems, and strategies being developed to impact health improvement in communities and impact of NCDs on society, interventions measures, and multi-sectorial approach for prevention of NCDs. Exploring critical strategies facing toward the prevention of NCDs, during these 2 days, rich and intensive program of the present conference will be delivered by renowned experts of the country through keynote lectures, plenary lectures, and research paper presentations. I sincerely hope that this conference will help us in increasing our knowledge of the burden of NCD, their determinants, risk factors, and help us in developing specific skills in NCD prevention by exchanging our knowledge and experience with participants and resource persons. I thanks once again to all of you, particularly our chief guest, resource persons, and participants for accepting our invitation. Thank you very much once again. Jai Hind. We are honored to have amongst us Dr. Vishwa Mohan Katoj, former Secretary, Department of Health Research and former Director General, Indian Council of Medical Research, New Delhi. Dr. Katoj's educational qualifications includes MBBS from Shimla, MD from AIIMS, New Delhi, VA from Medical Center, Long Beach, CA, USA. He is also a part of the Talent Search Scheme Fellows of ICMR, that is Indian Council of Medical Research. Dr. Katoj was a developer of modern methods of rapid diagnosis of TB, leprosy, DNA chips,
DNA fingerprinting, and many more, which led to the expansion mandate of JALMA from leprosy to all mycobacterial diseases. He has contributed over 270 research papers in Indian and foreign journals. He has been a part of many prestigious academies like National Academy of Sciences, National Academy of Medical Sciences, and Academy of Sciences, Bangalore, to name a few. He has also been a recipient of various awards like Young Scientist Award of IAMM, Irwin Stindl Memorial Oration Award of German Leprosy Relief Organization, and UC Chaturvedi Lifetime Achievement Award. We are indeed honored to have you amongst us, sir, and we welcome you. I would now request Dr. Katoj to deliver the welcome address. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, डॉक्टर भटनागर डीन, डॉक्टर जोशी, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर प्रोफेसर लोहिया, मैडम राखी गुप्ता, प्रोफेसर शर्मा और सारे जितने लोग सभागार में उपस्थित हैं, पहले तो मेरी इस इंस्टीट्यूशन के लिए चौथी विजिट है लगभग 4 साल में, और ये क्या दर्शाता है एक्चुअली एक बात, इसके लिए कुछ सूत्रधार हैं जैसे प्रोफेसर लोहिया, प्रोफेसर भटनागर को भी मैं 33 साल से जानता हूँ, मैं बार बार काउंट करता हूँ तो पहली मेरी मुलाकात 82 से इनके साथ। इंटरफेस है एकेडमिक्स का, साइंस का, और जो प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का, तो ये विजन आजकल के इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम मिलता है। लोगों ने बहुत एस्टेब्लिश किया है, सरकारी इंस्टीट्यूशन बने, प्राइवेट भी हैं बहुत सारे, लेकिन बच्चों के पर्सनैलिटी के अंदर शुरू से ही एकेडमिक्स डाल दी जाए, सोचने का तरीका डाल दिया जाए, तो इनोवेटर इमर्ज करेंगे। तो इस यूनिवर्सिटी का ये बहुत ही एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है शुरू से। सबसे पहले शायद मेरी मुलाकात प्रोफेसर राखी गुप्ता से हुई थी जब आप एग्रीमेंट साइन करने आई थी हमारे आईसीएमआर के इंस्टीट्यूशन के साथ, तो वो भी एक इंटरफेस दिखाता है इनका जो एक सोचने का ढंग, एक राष्ट्रीय लेवल के इंस्टीट्यूशन से जुड़ने का। मैं मानता हूँ उन चीज़ों का कुछ ना कुछ असर आने वाले टाइम में बच्चे दिखाएंगे ये सारे, क्योंकि असली यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन तो ये बच्चे दिखाएंगे, अभी तक का जो है सो है, लेकिन वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि जब इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट भी पॉजिटिव ही होगा, इसमें कोई उल्टा होने का सवाल ही नहीं है। तो मैं इसीलिए प्रोफेसर गुप्ता आपको मुबारक देता हूँ इस चीज़ के लिए, और कम्प्लीमेंट करता हूँ आपके विजन को, आपके सपोर्टर्स को, आपके जो पार्टनर्स हैं सभी को, क्योंकि इन बच्चों को आप सही एक दिशा पे डाल रहे हैं जो आने वाले भविष्य में निर्माण करेंगे एक बेटर सोसाइटी का। ये सब्जेक्ट इतना ब्रॉड है, इस पर इतनी इमोशंस हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन फोकस्ड सोचने का जब तक तरीका हमने इख्तियार करेंगे, बहुत सारे लोग आएंगे आपके आज के या कल तक एक्सपर्ट्स होंगे जिनको अपनी बीमारी अच्छी तरह से समझ आती है, इसके बारे में कैसे मैनेज करना है, क्या ट्रीट करना है, कैसे क्या प्रिवेंट करना है, दे टॉक लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली। लेकिन उससे सामाजिक बदलाव लाने के लिए आपके अंदर बदलाव चाहिए। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस कर रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस एक सूत्रधार डिपार्टमेंट है, न्यूट्रिशन से लेके पूरी चीजों के अराउंड, जो सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेटिव डिपार्टमेंट्स में से है। तो अल्टीमेटली इतनी ये बदलाव आज आया क्यों? 1947 आजादी ली हमने, हमारे पास कुल 5% मिडिल क्लास थी, 33 करोड़ जनसंख्या, 5% मिडिल क्लास, 5-6% के करीब, वेरी स्मॉल नंबर एक्चुअली, 1.5-2 करोड़। एपिडेमिक्स आती थी उसमें लोग साफ हो जाते थे, कोई कोलरा से मर गया, कोई स्मॉल पॉक्स से मर गया, लेकिन जो बच जाते थे वो 100 साल तक टिके रहते थे। लीन थिन, अपने बुजुर्गों के पुराने को फोटो देखना कभी आप, गांधी जी के साथ दांडी मार्च में चलते हुए लोगों को देखिए, बिल्कुल लीन थिन और एक्टिव टिल द एंड। आज हमारे पास बच्चा भी मोटा, बुजुर्ग भी मोटा, लेडीज भी काफी मोटी, और साथ में खूब सारी बीमारियां, ये सारी ओबेसिटी से लेके हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सब टॉप है। हम थोड़े परवर्ट हैं अंदर से। हम क्या महसूस करते हैं, जैसे लोगों ने कहा कि डायबिटीज इतनी बढ़ गई,
अब ऑलमोस्ट 6 से 7% एवरेज है, जो कई जगह 10-10, 12-12% तक है, 14 तक है कुछ जगह पे। हमें किसी ने कहा ये आप इंडिया कल वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल बन रहा है। हमें अंदर से क्या लगा कि हम शायद उसकी ये करने से हम दूसरों के बराबर हो गए, अमेरिका के बराबर। हमारा कंपटीशन उन्हीं से लगा है, हमारे पास उतनी डायबिटीज होगी तो हम भी उतने पावरफुल हो गए। अच्छा, ये एक परवर्ट थिंकिंग है अंदर की, लेकिन संभावना यह है कि उसकी ह्यूज कॉस्ट है इन्वॉल्वमेंट की। कैंसर लीजिए, मैं सब टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दूंगा ताकि आप कल 2 दिन जब सोचो, दूसरों के भाषण सुनो, तो आप सोचो कि आपको क्या करना है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा ओवरव्यू दूंगा इस कंट्री का और कहां हम स्टैंड करते हैं। तो डायबिटीज ऑलमोस्ट अभी भी कुछ ऐसे हैं कंट्री के जहां 2-2.5% है। अपना ICMR से स्टडीज कराई हैं, 2-2.5% तक भी है, लेकिन कई जगह 12-14, एवरेज वही कह रहा हूँ 6-7% तक पहुंच गया। उतने ही लोग प्री डायबिटिक हैं जिनको कि अगर 2-4 साल में हो जाएगी अगर वो प्रिकॉशन नहीं रखेंगे तो एकदम ह्यूज बर्डन ऑन द पीपल। उसकी कंसिक्वेंसेस बाद में क्या क्या होंगे, मैं उनके सबके ऊपर 2-2 मिनट बोलूंगा। कैंसर की वही हालत, बढ़ता हुआ झटके के साथ, हैवी बर्डन उसका मरने वालों का। साथ में फिर हमारे साथ और सारी बीमारियां, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर, हार्ट की डिजीजेज हैं, ब्रेन की डिजीजेज हैं, सब वो आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से, जिनमें की डाइट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। एक्चुअली हम काम करते थे फिजिकली, वो गोल हो गया, ये सब मिल मिला के थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सारा। साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं जिनको हमें समझ ही नहीं है। अभी यंग बच्चियों में और उसके बाद ग्रोथ यंग वुमन के अंदर पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम की चीज बढ़ गई काफी, PCOS। पहले बहुत कम होता था ये, क्योंकि मैं भी किसी जमाने में शुरू में गायनी में रेजिडेंट रहा था 75 के करीब। हम तब से पढ़े हुए सारी चीजें, बहुत कम नंबर था इसका। आज वो डोमिनेंट है एक्चुअली। उसी से उनके अंदर इनफर्टिलिटी, उनके अंदर हाइपरटेंशन, डायबिटीज सब बढ़ गई साथ साथ में। अब क्यों बढ़ा वो सारा, हमने कभी इसका सोचा भी नहीं बीच में। हमारी अगर उस वक्त बुजुर्गों को डाइट और उनको रहने के तरीके से वो 100 साल तक ठीक रहते थे, और वो सिंपल डाइट होती थी। पंजाब हिमाचल चले जाओ तो सिर्फ आप मक्की की रोटी है और माँ चने की दाल है, और ज्यादा से ज्यादा कभी कभी कड़ी मिल गई, और कभी थोड़ा सा आपने एक आधी चीज और डाल दी, राजमा खा लिए कभी कभार। अब उसके आइटम्स हैं 50। वही चीज केरला में खाने वालों का सिंपल अपना डाइट था, सांबर था, तमिलनाडु का सांबर था, सब में 5-6 सब्जियां डली हुई, एक दाल डली हुई है साथ में, टोटल कोई न्यूट्रिशन नहीं, पतले दौड़ रहे हैं ठीक ठाक सारे। अब हमने अपनी डाइट को कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। वी जस्ट डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली। अच्छा, उस डाइट के अंदर बहुत सारे सिंथेटिक्स आ गए, केमिकल सिंथेटिक्स आ गए बहुत सारे। आपके फूड चेन, हैवी फूड चेन को बरकरार करने के लिए उसमें पेस्टिसाइड डले। वो जरूरी है, उसका कोई चारा नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर नहीं डालने चाहिए थे वो मैं कहूंगा कैसे कैसे बदलाव आए हैं जो घरों में आए हैं, जिनको हमने वॉच नहीं किया। हम लोगों को जो उनकी मूल एजुकेशन थी, जो सोसाइटी में दम था पुराना, हमें कोई नई साइंस की आवश्यकता नहीं थी, कोई बड़े बड़े ग्रेट की नो स्पोकन नहीं चाहिए, स्पीकर नहीं चाहिए थे आपके लिए। दिस नॉलेज वाज नोन टू अस। आपकी बुजुर्ग, आपकी माँ बाप, आपकी दादी नानी, सबको पता था सब कुछ ये कि क्या डाइट आपके लिए, और उसके साथ आप हेल्दी थे, 100 साल तक जीते थे, इन्फेक्शन डिजीज से बच गए। तो दैट वी हैव लॉस्ट एक्चुअली, देयर इज नो ट्रैक ऑफ दैट। अच्छा, इस सारी की चीज के कारण ये हुआ कि सारे के सारी बीमारियां जो मैं आपको कह रहा हूं, ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर सब बढ़ गए। आज की स्थिति यह है कि अब देश में मरने वालों के 55 to 60% पीपल आर ड्यू टू दिस एक्चुअली। इसके साथ साथ एक और बदलाव आया है, तीसरा बटन, कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर तो मैं टच ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीज पे हमने कंटेन किया है काफी हद तक, तभी हम बचे हैं, हमारे एपिडेमिक्स पेंडेमिक्स नहीं आते, हमने काफी कामयाबी इसमें हासिल की है। इंडिया इज अ सक्सेस स्टोरी फॉर द कंटेनमेंट ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस, देयर इज जस्ट नो डाउट ऑन दैट पार्ट। अब उनसे हम आसानी से उनको बनने नहीं देते, हम कंटेन कर लेते हैं, रेदर वी आर मच मोर एफिशिएंट देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन ये जो बदलाव आ रहे थे तो हम आंखें मूंद के सोए हुए थे। जैसे हम अचानक पोल्यूशन के बारे में उछलने शुरू कर देते हैं अचानक, अरे पोल्यूशन एक दिन में थोड़ा बिल्ड हुआ, उसी तरह से ये सब चीजें एक दिन में थोड़ी बिल्ड हुई। दिस वाज हैपनिंग ओवर फॉर 40 years, 30 years, 40 years। तो ना तो समाज में कोई पढ़ा रहा था उस ढंग से कि ये बदलाव आने वाला है, ना तो होम साइंस इंस्टीट्यूशंस थोड़ा थोड़ा पढ़ाते रहते थे कि ये डेफिशिएंसी हुई, तो डेफिशिएंसी के ऊपर केंद्रित थे, एक्सेस पे केंद्रित नहीं थे हम। डेफिशिएंसीज को केंद्रित करके हमने आयोडीन की डेफिशिएंसीज को कंटेन कर लिया, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज को कंटेन कर लिया। वो आज भी करना है, वो चैलेंज आज बरकरार है, वो खत्म नहीं हो गया। लेकिन एक्सेस की तरफ जब जा रहे थे तो एक्सेस को नहीं कंटेन किया हमने।
तो लॉपसाइडेड, वन साइडेड थिंकिंग रही हमारी सारी। उसी कारण अब देखिए कि ये सब जो चीजें जो हमारी फिजिकल हालत के ऊपर आई हैं, ये जो चीजें हम अपनी बीमारियों, तीनों चारों बीमारियों का जो कॉम्प्लेक्स है, उनसे जब आप लंबे टाइम तक जीते हो तो आपको रिपीटेड किडनी डिजीज हो रही है, आपके हार्ट प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रोक्स हो रही हैं, सब कॉम्प्लिकेशन है उसकी सारी। वेस्कुलर लिपिड मेटाबॉलिज्म की अल्टरेशंस की वजह से और साथ के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से आपकी सारी बीमारियां बढ़ गई हैं साथ साथ। लेकिन ये बीमारियां सबकी बढ़ी, गरीब वर्ग की भी बढ़ी, उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बहुत हैवी है एक्चुअली। जब उनको इतना सारा पैसा उसी में लगाना पड़ता तो उनके डेवलपमेंट में कहां लगाएंगे वो लोग। अच्छा, वो किसी का देखो कैंसर हो गया, जो कैंसर पे आज एक साल में कितने कैंसर के पेशेंट बढ़ जाते हैं, 11 लाख से 12 लाख पर ईयर न्यू केसेस करते हैं कैंसर के। उनमें से कब 3, 4, 5 साल तक खिंचते रहते हैं उनको, आपको जिएंगे, मरेंगे, हैवी इकोनॉमिक बर्डन आएगा उनके ऊपर। तो ये सारा के सारा चीजें सिर पे आ चुकी है। अब पीछे से रोने का कोई फायदा नहीं कि हमने 30 साल 40 साल क्यों सोए, लेकिन आज वी कैन डू समथिंग। इसके साथ एक और जो चीज आई है जिसके अंदर हम लोग चूक गए हैं काफी हद तक, वो था हमारे साइको सोशल बिहेवियर प्रॉब्लम्स। चाहे वो एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बाद वाली हैं। आज देश एक चीज के लिए रोना ज्यादा, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात तो कभी कभार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं तो लोगों को अच्छा लगता सुनना, लेकिन what we are known for? We are known for gang rapes. You know, we are on the top there in the world. ये शर्मनाक स्थिति कैसे बिल्ड हुई? एक दिन के अंदर तो नहीं हुई बिल्डिंग। वो एजुकेशन जो माँ अपने बेटों को पढ़ा सकती थी, जब माँ का जो रिलेशनशिप बाप बेटे के साथ होता था वो खत्म हो गया। एक मॉडर्न माँ के लिए बाप बेटा कहाँ एग्जिस्ट करता है? अब वो कभी कभार इमोशन दिखाती है थोड़ी बहुत उसके लिए। अच्छा, दूसरी बात रहेगी आगे, ऐसी बच्चे हैं जो जिनके माँ बाप के साथ कनेक्शन ही कोई नहीं है। तो जो साइको बिहेवियरल इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी था वो हमने खुद छोड़ दिया। कुछ की डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, अर्बनाइजेशन हुआ जहां पे उनको मजदूर थे, उनके पास पड़े हुए, उनको कोई रहने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है। मेनी थिंग्स हैव हैपेंड। यू लुक एट दिस क्रिमिनल्स व्हिच आर डूइंग दिस थिंग्स एक्चुअली, उनके पीछे का पैटर्न देख लीजिए क्या हो रहा है। लेकिन मोर देन दैट इट इज हैपनिंग इन द अर्बन हायर स्टेट ऑफ द सोसाइटी। उनके पास खूब धन है, उनमें बदमाशों की कमी कोई काम नहीं है, वो छूट जाते हैं अपने पैसे के बल पे, वो दूसरी बात है, लेकिन उनमें कमी नहीं है। तो जो साइको सोशल बिहेवियर और मेंटल हेल्थ के लिए एजुकेशन चाहिए थी वो हमने अबंडन कर दी। तो हमारे पास ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का दायरा काफी बड़ा है एक्चुअली। 1-2 डायबिटीज, हाइपरटेंशन तक नहीं है, ये आपका इन चीजों के ऊपर है। डायबिटीज, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर जो क्लासिकल डिजीजेस हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, राष्ट्रीय नेशनल प्रोग्राम का हिस्सा है, इसके साथ साथ ये साइको सोशल, साइको बिहेवियरल और साथ में मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये इतनी ही क्रिटिकल है। तो न्यूट्रिशन से शुरू करके, जिससे कि ये तीनों चारों चीजें पहले वाली जुड़ी हुई हैं, साथ में ये जो मेंटल हेल्थ की एजुकेशन थी, साइको सोशल मॉरल एजुकेशन थी, ये डाइल्यूट हो गई बिल्कुल। तो बच्चों को अपना स्ट्रेस कोप करने के लिए कुछ नहीं है। एडोलेसेंट की समस्याएं, उसके बाद की समस्याएं, और ये सारी की सारी समस्याएं जो मैं गिना रहा हूं सब बढ़ गई खूब जोशों से। तो अब इन समस्याओं के लिए क्या किया जा सकता है आज के टाइम में? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये बात है आज के इस शुरू के, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। ये इतने भारी चीज को कोई दूसरी चीज नहीं संभाल सकती। जो बिहेवियरल चीज हमने कंट्रोल नहीं करी, गाड़ी के जब हम ड्राइव कर रहे हैं तो हम ही ब्रेक लगाएंगे। वी आर द पीपल। और आप जब बच्चे बड़े होंगे, आपकी कल जिम्मेदारी होगी तो आप लगाएंगे। आप अपने लोगों को भी समझाओगे, अपने परिवार को समझाएंगे। आप आज भी ये रोल निभा सकते हैं आज के साथ। जैसे मैं कह रहा हूं डायबिटीज की बात, तो डायबिटीज बढ़ते बढ़ते जब इतने लाख, इतने करोड़ों का लोड आपके ऊपर हो गया, क्या किया जा सकता है इस बगैर? अभी भी रिवर्सल संभव है। क्यों? वही 6%, 6.5% अभी प्री डायबिटिक्स हैं, जिनकी आज भी जिंदगी के स्टाइल में बदलाव लाने से, डाइट को सिंप्लीफाई करने से, इनकी बहुत सारी चीजों को, अपनी एक्सरसाइज और अपने एक्टिव लाइफ को लीड करने से, चाहे वो कैंप में जाके काम करें, खेत में जाके काम करें, दौड़ लगाएं, कुछ भी करें, लेकिन एक मीनिंगफुल फिजिकल एक्टिविटी जिससे कि आप उतना खाओ जो आपको कंटेन रखो, तो आपकी इतने % लोगों को बीमारी 10 साल 20 साल और खिंच गई आगे, हो सकता हो ही नहीं। हाइपरटेंशन की बात, बहुत सारे इतने बच्चों में हाइपरटेंशन इतनी ज्यादा आज, क्योंकि माँ बाप उनको घोड़े की तरह दौड़ा रहे हैं, स्ट्रेस है उनके ऊपर। अच्छा, वो स्ट्रेस
कोप करने के लिए माँ बाप को तो समझना है, लेकिन बच्चे को भी समझना है। अगर आप कंपटीशन कर रहे हो तो आप कंपटीशन करिए, लेकिन स्ट्रेस से दूर रहिए अपने को। आप अपने मत महसूस करिए कि ऑल और नन फिनोमेना में मर जाऊंगी, कुछ नहीं हुआ तो। मरने का कोई बात नहीं है इसमें, दिस इज द प्लेस फॉर एवरीबॉडी। तो ये आधे तो आपके सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन और आपकी पर्सनैलिटी के बदलाव से ही बदल जाएगा। मैं हाइपरटेंसिव हूं कई सालों से, 20-30 साल से। शुरू में जब मुझे शुरू हुई तो वही होती थी इंस्टीट्यूशन में, यार आधे लोग बदमाश हैं, कोई काम नहीं करते, वो भी ऐश कर रहे हैं, हाँ हम बैठे हुए, हमें कोई पूछता नहीं है। अच्छा, ये एक कम्प्लेक्स आता था, उसी से बढ़ गया 10-20। तो कुछ दिन के बाद समझ आया, यार ये तो डायरेक्टर की प्रॉब्लम है, मेरी क्या प्रॉब्लम है? If the director is not doing justice to the hardworking people, it is his problem. Let me continue to work. ठीक है, why should I bother? See, वो जब आ गया उसी से मैं 10 साल ठीक रहा। बिल्कुल हम आपको बता रहे हैं अपनी व्यक्तिगत लाइफ की बात। अच्छा, थोड़ा वॉकिंग शुरू करो तो हाइपरटेंशन पे जिसके दवाई का असर नहीं होता, दवाई का असर हमें शुरू हो जाता है। ये सब मेरे अपने ऊपर की हुई चीजें हैं। मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने खुद अपने आप की हुई चीजें सारी है, और लेकिन फिर भी आएंगी चीजें तो मैनेजेबल है, उसके लिए मैनेजमेंट है। इग्नोर करने का कोई चीज नहीं है, लेकिन इग्नोर नहीं करने के बजाय डॉक्टरों के चंगुल में फंस के आज के डॉक्टरों पे भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सच्चाई है ये। कमर्शियलाइजेशन जो हुई है, कौन डॉक्टर आपको क्या राय देगा कोई पता नहीं है। सरकारी इंस्टीट्यूशंस में तो अभी भी बाई एंड लार्ज लोग बचे हुए हैं। प्राइवेट में आइदर दे आर वेरी गुड पीपल और अल्ट्रा बुचर्स, तो दोनों का बीच का बहुत कम है। तो अब उस वाली चीज के अंदर आप कैसे मैनेज करेंगे? अपने नॉलेज के साथ। आपको लगेगा पढ़ रहे हैं, सब चीज आपके नॉलेज डोमेन में है, इंटरनेट के जरिए सब आपके पास है, आपको यहाँ कॉलेज में पढ़ाया गया है, आपको बहुत सी चीजें लग रही है कि ये चीज जो मेरे साथ हो रही है ठीक हो रही है ये, और नहीं हो रही है तो गड़बड़ हो रही है ये। जब वो पता है आपको तो गड़बड़ नहीं हो सकती। हम आपको बताते हैं, हमारी बेटी IPS ऑफिसर है। जब शुरू में किसी जगह पोस्ट हुई दक्षिण कन्नड़ जिले में, केरला के साथ है, बहुत हाई 100% एजुकेशन वाली जगह, तो वो लोग कंप्लेंट लेके आते थे, तो कंप्लेंट लेने के पहले क्लॉज पढ़ के आए होते थे कि इस क्लॉज में FIR होनी है। उससे पूछे प्रॉब्लम क्या है, बोले प्रॉब्लम से पहले ये पढ़ो कि इसके अंडर केस दाखिल होना है। सो दैट मीन्स उनको लोगों को इतने प्रबुद्ध हैं कि उनको पता है कि उनका केस किस क्लॉज में आएगा। तो दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर योर हेल्थ एक्चुअली। आप प्रिसाइजली वही करेंगे। अब अपने को मैनेज करना, फिर आपको जब एज ए वैज्ञानिक इमर्ज करें, आप में से बहुत सारे टीचर इमर्ज करें, एकेडमिशियन बने, तो आपको इन्हीं चीजों पे प्रोजेक्ट्स लेने हैं, आपको डेमोन्स्ट्रेशन की चीजें करके देनी है, ताकि ये नॉलेज आप जनरेट करेंगे। मैं जो आज बात कर रहा हूं मेडिकल वर्क की, बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है क्योंकि उनका डाटा नहीं है। इंटरनेशनल कहीं से पढ़ेंगे, कंपनियों वाले पढ़ाएंगे, वो फट उसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो उसमें बहुत से जो अच्छे डॉक्टर हैं वो तो नॉलेज एविडेंस बेस से चलते हैं। बहुत से नॉलेज है उनका ऊपर का नॉलेज है, क्योंकि इंडिया का नॉलेज अवेलेबल ही नहीं है, वो बस डाला और कुछ कर दिया। आपको जो बिल्ड करना है इन बीमारियों को संभालने के लिए, अपने को बचाने के लिए, परिवार के लिए, सोसाइटी को, और अपनी साइंस भी करने के लिए, अगर आपका करियर बनने का गोल है इसके अंदर, तो आपको एविडेंस बेस्ड बनाना है सब कुछ। डायबिटीज के लिए देखिए कितनी इस चीजों में वो है माल प्रैक्टिस। वो भी दवाइयां जो बिल्कुल कुल आपकी 5-7 रुपए में हैंडल हो सकता है, तो बिल्कुल एक फॉरेन की दवाई आ जाएगी, वो 100 रुपए वाली है, वो 100 वाली इंट्रोड्यूस हो जाती है विदाउट एविडेंस कि इसका कोई फायदा है या नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स भी पता नहीं है। और ये आज फ्रीक्वेंटली हो रहा है, क्योंकि उनके एक बार डॉक्टरों को एक चक्कर मरवाया इधर उधर का, थोड़े पैसे दिए और दवाई बिक गई, पूरी दुनिया में बिक गई, तो उसमें करोड़ों का काम हो गया। सो क्वेश्चन इज, डोंट ट्रस्ट द मेडिकल पीपल स्ट्रेट अवे। आप अपने को एम्पावर करिए। अच्छे डॉक्टर आपको अपने आप पता लग जाएंगे, लेकिन आप कंपिटेंट हैं तो आपके साथ कोई छलावा नहीं कर सकता। आप स्ट्रांग हैं, आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। आप अपने को प्रोटेक्ट करती हैं तो आप रेप से भी बची हुई हैं, एक्सप्लॉइटेशन से भी बची हुई हैं, आपको परिवार भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। और जैसे प्रोफेसर गुप्ता कह रहे हैं, कल आप एक स्ट्रांग सिटीजन इमर्ज करेंगी जिनका की रोल होगा, नॉट इन द होम, एवरीवेयर। होम इज जस्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मच बियॉन्ड दैट। कैंसर की बात लीजिए, अब इसकी डायबिटीज की बता रहा था, अब वो उसमें जो स्ट्रिप्स हैं चेक करने वाली, वो 30 रुपए वाली हैं। जब हमने इंडिजिनस स्ट्रिप्स डेवलप कराई इस कंट्री के अंदर, उसकी कॉस्ट 2 से 3 रुपए में आ जाएगी, 5 रुपीज मैक्सिमम होगी उसकी। आगे हमने बिल्कुल यहाँ के लोगों ने डेवलप करके मार्केट में आ जाएंगी वो। क्वेश्चन ये है कि 10 गुना प्रॉफिट्स, किसी में 100 टाइम्स प्रॉफिट। तो आप पहले तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे जाइए जो आपके हाथ में है, मैनेजमेंट भी चाहिए, वो भी आपके हाथ में है। यू आर चूजिंग ए डॉक्टर,
जिसके कि आप कि वो गड़बड़ नहीं कर रहा है, ये कर रही है, और उसके बाद आप उसकी सलाह तभी लेंगे जब आपको जरूरत है। डेली तो उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है कुछ भी। उसी तरह से पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम की बात कर रहा था मैं, ये बढ़ रही है क्यों अचानक? मोस्ट लाइकली सिंथेटिक्स आर रिस्पॉन्सिबल, वी डोंट नो। आपके फूड के अंदर है, कहां पे है वो नहीं मालूम, लेकिन कॉमन चेन है, क्योंकि पानी सब जगह कॉमन नहीं होता। अगर कैंसर बड़ा इतनी जगह बढ़ गया तो सब जगह पानी कॉमन पानी तो नहीं है। फूड कॉमन है, फूड की चेन सब जगह जा रही है। ये आपके सब सिंथेटिक लटके हुए हैं आपके हर छोटी छोटी दुकान में, वो कॉमन है। तो आपको एजुकेशन देनी है कि इंजन सिंथेटिक्स को जहां तक संभव है नई पीढ़ी कम यूज करे। वी डोंट नो, आई डोंट वांट टू कंडेम एनीथिंग एक्चुअली। इसका मेरे पास प्रूफ नहीं है, उसके ऊपर पीछे लग जाना गलत है। अब बहुत सारी कंपनियां लगे कि ये पेस्टिसाइड्स बंद करो, लेकिन वो किसके पीछे लगी? जो सस्ता था। उसी वाले एंडोसल्फान से गड़बड़ हुई थी केरला में और कर्नाटका में, कंजेनेंटल एब्नॉर्मलिटीज डेवलप हुई, उसके पीछे दुनिया लगी। बाद में इसलिए पीछे लगी क्योंकि हवा से स्प्रे किया था, इसे एरोप्लेन से, अपने हेलीकॉप्टर से, वो पानी में केंद्रित हो गया। लेकिन और जगह तो कोई साइड इफेक्ट नहीं थे उसके, लेकिन वो सबसे कम था, कॉस्ट का था। 30 और पेस्टिसाइड सेम इफेक्ट वाले हैं। पेस्टिसाइड्स के बगैर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती, लेकिन वो एग्रीकल्चर इस तरह से किया जाए ना तो वर्कर एक्सपोज हो, ना पानी के सोर्स में जाए, आप बचे रहें। अब ये कौन पढ़ाएगा? ये एजुकेशन हैज टू स्टार्ट बाय द पीपल। एग्रीकल्चर वाले भी एजुकेशन थोड़ी थोड़ी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दिस इज टू बी डिसेमिनेटेड बाय यू पीपल। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द सिंथेटिक्स प्रिजर्वेटिव्स। जो चीज आपके अंदर जा रहा है उसको आप पहले सोचिए कि काम का है या नहीं। हर चीज ऑर्गेनिक नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्गेनिक के साथ इतनी ज्यादा फार्मिंग नहीं हो सकती। फार्मिंग के लिए आर्टिफिशियल कुछ मेथड्स करने पड़ेंगे ताकि इतने अरब करोड़ों के लोगों को खाना खिलाया जा सके। तो वो वाली बात, दीज आर नॉट द एनिमीज, बट द वे वी ट्रीट देम दे बिकम एनिमीज। ये वाली बात सोचना आपके ऊपर है। तो ये व्यावहारिक जो चीजें आज के बदलाव आए हैं, जिनसे सब चीजें बढ़ी हैं, ये उनके ऊपर सोचना जरूरी है। लेकिन बगैर एविडेंस के एनजीओ के माहौल में मीडिया छापता है, किसी भी चीज को कंडेम करना भी गलत है। ये आपकी पर्सनैलिटी में मेच्योरिटी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग ये कंडेम करते हैं उनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं। एक कंपनी दूसरी को डाउन कर रही है तो दूसरे के प्रोडक्टिव वाले छपवा देगी, खूब सारा मीडिया में लगवा देगी, वो नहीं चाहिए। तो डायबिटीज एसेंशियली मैनेजेबल है, इसके कंसिक्वेंसेस मैनेजेबल हैं, पूरी लाइफ आपकी नॉर्मल हो सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड राइट काइंड ऑफ मैनेजमेंट रहे, प्रिवेंटिव है सारी। कैंसर कितना प्रिवेंटेबल है हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ कैंसर प्रिवेंटेबल है। हेपेटाइटिस बी फैला हुआ पूरे देश में, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अब पूरे देश में दे दी है सरकार ने। अब वो वैक्सीन अगर सारे लगा लेते हैं और बिल्कुल बच्चे को बिल्कुल पैदा होते साल लग जाती है, तो उसका हेपेटाइटिस का रिस्क भी गोल हो गया, कैंसर का भी गोल हो गया, तो लीवर का कैंसर प्रिवेंट हो गया। वुमन के अंदर एक बच्चादानी के मुंह का सीए सर्विक्स जो है, कैंसर सर्विक्स, वो पहले बहुत था, अब कम हो गया रिलेटिवली, लेकिन उसका मेजर पार्ट इज एसोसिएटेड विद द वायरस। तो वो अगर वायरस की वैक्सीन मिल जाती है तो फिर वो कैंसर प्रिवेंटेबल है। तो साल में ऑलमोस्ट 1 लाख डेथ्स होती हैं, 1 से 1.5 लाख, वो प्रिवेंटेबल है। बाकी हमें एक्चुअल पता नहीं है कि कौन से फैक्टर से अचानक बढ़ गया। तो जो फैक्टर जिनको हम कंटेन कर सकते हैं, ये सिंथेटिक्स वाले, इन चीजें जो हमारी जिंदगी में पहले नहीं थी आज आई हैं, उनको उनके जरिए हम प्रिवेंटिव रोल प्ले कर सकते हैं। और हर कोई करेगा, बचा रहेगा। आपके दालें हैं, क्लीनली वॉश कर रहे हैं आप, आपके वेजिटेबल्स हैं उनको रिपीटेडली 3-4 बार वॉश कर रहे हैं ताकि उसके अंदर नहीं बचे कुछ भी। अभी भी देश में उतनी सीरियस समस्या नहीं है। पूरे कंट्री में हमने जो बार बार स्क्रीनिंग चली है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने भी करी है, हजारों सैंपल हर साल करते हैं, तो उसकी पॉजिटिविटी रेट सेम इज 2% के करीब है, जो यूएसए में भी होती है। लेकिन 2% तो है, इसलिए आपको धोना चाहिए, प्रॉपर्ली करना चाहिए। तो ये चीजें कि चेन, किस चेन से क्या बदलाव आ रहे हैं, ये पढ़ना लिखना जरूरी है। और इसके जरिए फिर आपको साइंस बेस्ड पॉलिसी अपने लाइफ में लानी है। अब बात रहती है, जैसे कैंसर की बात आ रही थी, मैं बोला उसमें भी इनोवेशंस चाहिए रिपीटेडली। ये बच्चादानी के मुंह के कैंसर के एग्जामिन करने के लिए कॉल्पोस्कोप आता है, गायनी वाले इस्तेमाल करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स 8 से 10 लाख का है। हमारे एक इंस्टीट्यूशन ने विकसित किया, एक छोटा सा छोटी नर्सरी यूज कर लेती है, कुल उसकी कॉस्ट है 10,000। कहाँ 10,000, कहाँ 10 लाख, ठीक है, कितना गैप है। तो क्वेश्चन ही पैदा हो रहा कि इनोवेशंस हो रही हैं जिसके जरिए डायग्नोसिस सस्ता हो पाएगा, जिनके जरिए मैनेजमेंट सस्ती हो पाएगी। पर आपका एक जो दूसरी साइंस वाला वर्क है या नॉन साइंस वाला वर्क भी है,
मेडिकल के साथ जुड़ के उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता है और उसके भागीदारी बन सकता है उसकी डेवलपमेंट के अंदर, तो एरिया बहुत विस्तृत हो जाता है, बहुत ब्रॉडर हो जाता है वो। ये इसलिए एक मन में जो आज की जो शुरू के मैं जो आपको जो की नोट में बताना चाहता था आपका, इस सब चीज की आपका रोल क्या होगा, उसकी चाबी आपके हाथ में है। और वो आप जब सब चीजों में ऐड करोगे तो आपको अपने आप लग जाएगा कि मैं किस एरिया में अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी। यू मे बी ऐसे हमसे कि you may turn into academician, you may turn into a researcher, but you may continue somehow, you may continue to be housewives. I don't know. मैं वो रोल किसी बच्चे के लिए नहीं देखता। मेरे लिए हाउसवाइफ का रोल एक रोल है, उसके साथ वुमन के रोल कई रोल हैं और साथ में। So you may be playing all roles and I wish each of you plays that role. लेकिन इस वाले खेल में एनसीडीज के मैनेजमेंट में आपका रोल, सारे सोसाइटी का रोल बहुत ज्यादा है। तो आप कैसे ग्रुप बनाओगे, कैसे ग्रुप बना के इन चीजों पे सोचना शुरू करोगे, एनालाइज करना शुरू करोगे, किस चीज की एविडेंस कंट्री में है, किस चीज की एविडेंस कंट्री में नहीं है, और उसमें आप न्यूट्रिशन में रिसर्च करना चाहती हैं तो न्यूट्रिशन के जरिए आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, वो रोल समझिए आप। और सबके अंदर है सारा ये न्यूट्रिशन तो की फैक्टर है सारी चीजों का ही। अब उसके आगे फिर सारी चीजें जुड़ती जाती हैं, एक एक करके जुड़ती जाती हैं। और लास्ट का जो पार्ट जो मैंने आपको कहा है वो साइको बिहेवियरल वाला बहुत क्रिटिकल है। वो साइको बिहेवियरल गड़बड़ होने का एक पीढ़ी ने जिम्मेवारी छोड़ दी। सडनली वी आर ब्लास्टेड। एक दिन में नहीं हुआ ये सब कुछ, लेकिन यंग वर्ग खड़ा हुआ। निर्भया केस के बाद यंग चिल्ड्रन, यंग स्टूडेंट्स, मेडिकल वाले, दूसरे सड़कों पे उतर आए। तब सरकार को बाध्य होकर कुछ एक्शन लेना पड़ा। 3 साल के बाद एक बदमाश फिर छूट गया, वो छोटा। 3 साल के बाद अगेन लोगों को लगा कि वो सड़क पे आ जाएंगे। एक दिन में बिल पास हुआ, एक दिन के अंदर। तो ताकत आपके पास है सब चीजों के लिए, सोशल के लिए भी, इन चीजों के लिए भी। लेकिन अगर आप एक लेक्चर दो दिन का सुनने के बाद फिर शांत हो जाएंगे, उसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं, तो कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। नॉलेज बढ़ेगा, यू विल बी बेटर देन अदर्स, बट इफ यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग, what difference it makes? So ultimately, सभी बच्चों को मेरी एक ही बात है, you go back with the determination after 2 days that I will contribute. What you decide. I think that's what you have to decide. हर सेमिनार, हर फंक्शन के बाद में आप सोचिए कि मैं क्या करूंगी, मेरा रोल क्या होगा, कल मेरा इम्प्रिंट क्या होगा। अगर आपके दिमाग में यह है तो आप इम्प्रिंट छोड़ेंगी, आपके हाथ में है वो सारा। रोल परिवर्तन, प्रॉब्लम दूसरी चीजें, वो बात की बात है, हर्डल्स आती हैं, नेचुरल है सारा। जिस रास्ते में चलोगे झटके लगेंगे, लेकिन यू विल कंट्रीब्यूट। तो ये 2 दिन की ये जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि आएंगे बहुत सारे अच्छे प्रबुद्ध स्पीकर्स, यू लिसन टू देम, जॉट डाउन पॉइंट्स, लेकिन डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। आपका रोल इनकी प्रिवेंशन, इनकी बेटर मैनेजमेंट, इस कंट्री के अंदर आपका रोल क्या होगा। And each of you have a role. It's just not only knowing something and doing nothing. It is to know and to act. वो बेटा आपको क्या करना है वो आपने सोचना है। मेरा तो अभी लाइफ का जो दौर है ये आप लोगों को अंदर से प्रेरित करके मजबूत बनाने का है। पहले भी मैंने ये किया कई सालों से, लेकिन अब मैं फ्रीडम से बोल सकता हूँ। अब सरकार की कई चीजों पे कमेंट भी दे सकता हूँ। पहले सरकारी सेक्रेटरी होने के नाते थोड़ा मुंह सिला रहता था, लेकिन अल्टीमेटली यू आर द पीपल हु हैव टू ड्राइव। तो आज सर बहुत मुझे आना अच्छा लगा और आशा करता हूं कि दिस विल वर्क आउट वेरी वेल। और आपका ये जो एकेडमिक माहौल इसी तरह से ग्रो करता जाएगा और चीजों में हर स्फीयर में, तो बहुत सारे स्फीयर्स हैं जो मेडिकल से नहीं जुड़े हुए हैं, बट दे आर लिंक्ड टू द सोसाइटी। ये मेरी आकांक्षा भी है और शुभकामनाएं हैं। बच्चों आप सभी को शुभकामनाएं, ब्लेसिंग्स, जय हिंद। Thank you, sir. I would now request the dignitaries on the dais to relieve.
मैम थोड़ा पास। Katoj, former Director General ICMR, Dr. Ashok Gupta, Vice Chancellor, the IIS University, Professor Pradeep Bhatnagar, Dean Faculty of Science, the IIS University, Registrar Dr. Rakhi Gupta, IIS University, Dr. Swati Vyas Ramani, Organizing Secretary, and all the esteemed invited speakers, participating delegates, and guests in the audience. It is my proud privilege to propose a formal vote of thanks on behalf of the IIS University Jaipur at the inaugural ceremony of the two-day National Conference on Prevention and Management of Non-Communicable Diseases. The non-communicable diseases are of growing concern, especially in Indian context and as well in the developing countries, where it is estimated that by the end of the current decade, NCDs will be one of the major responsible factors for disease-related early mortality. Accordingly, WHO and World Health Human Development Network have identified the prevention and control of NCDs as an increasingly important discussion item on the global health agenda for appropriate early interventions. The need, therefore, is for a widespread awareness of the looming danger due to NCDs and calls for intensive effort by scientists, public health professionals, and policymakers to devise and implement effective remedial measures. I am confident that these 2 days will provide ample opportunities to one and all to exchange their views and research ideas on as to how to meet the emergent needs to combat the NCD challenges. I would like to express my deep gratitude to Dr. V.M. Katoj for so very kindly acceding to our request to deliver the keynote address. Thank you, sir, for your presence and insights. Your address, sir, has set the tone for the deliberations that are to take place over the next 2 days. My thanks are due to all the invited speakers for consenting to speak on the contemporary issues on the field of non-communicable diseases. Thanks are also due to all the academicians, delegates, and students who have come from far and wide to attend the conference. I sincerely hope that your inputs and interaction during the course of the conference will make new contributions to the field and will be of immense value in times to come. The event would not have been possible without the unstinted support and invaluable guidance of Dr. Ashok Gupta, the Vice Chancellor, IIS University. His guidance throughout has given this 2-day event its present shape. I would be failing in my duty if I do not put on record my sincerest appreciation and thanks to Professor Rakhi Gupta, Registrar, the IIS University, for her meticulous approach towards planning and attention to detail, which has been immensely helpful in shaping up of this event. I would also like to thank Professor Pradeep Bhatnagar, Dean Faculty of Science, the IIS University, for guiding and helping us at every step to organize an event of such stature and magnitude. The smooth conduct of the event would not have been possible without the team spirit of all the faculty members, student volunteers, research scholars, and the technical and support staff. Thanks to all of them. Lastly, I thank all the media persons whose ample coverage of the conference will bring this contemporary issue closer to public interest and notice, with the hope that the conference will accomplish all its objectives. I wish it the best. Thank you once again.